I hope you all found the first session is very technical and informative for all of you. And once again, I want to extend my warm welcome to all of you in today's session, today's expert session. And it is now my privilege to invite our respected Dr. Shanli Lamba ma'am, HOD Department of Computer Science, and Dr. Nidhi Srivastava ma'am, HOD Department of Management, to kindly come forward and felicitate our esteemed resource person, Professor Dr. Ravins Porwal, with plant and a memento as a token of gratitude and respect. Thank you, ma'am. It is now my pleasure to introduce our distinguished resource person, Professor Dr. Ravins Porwal, for today's session. Dr. Porwal is a professor and head, Department of Computer Applications, School of Engineering and Technology, Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur, with over 24 years of rich academic and research experience. He is a renowned academician, researcher, and educator, actively associated with prestigious professional bodies including IEEE, ACM, CSI, ISTE, and ISCA. Throughout his renowned career, he has received numerous prestigious recognitions, including Best Professor in Computer Application Award in 2026 and the Universal Innovator Leadership Award in 2024. For his remarkable contribution in higher education. Dr. Porwal has published more than 70 research papers in a reputed journal, authored books on AI and data science and machine learning, filed 8 patents, and delivered over 35 keynotes and invited lectures and guided several PhD scholars. Today's session focuses on a topic that is transforming a landscape of education, a new era of teaching, e-learning, learning management system, gamification, and AI-powered adaptive learning in education. So on behalf of National PG College and all the participants, I extend my warm welcome to you, sir. And we are eager to learn from your vast experience. So thank you, sir, and the stage is all yours. Thank you. Thanks for such a good introduction actually to what I say. And thanks Dr. Shanli Lamba and for inviting me, Dr. Nidhi Srivastava, Dr. Rinku Raheja, and Dr. Amit Srivastava, I know. So thanks for inviting me for this this lecture in this Aptal FDP, and the topic is very easy to understand, and I hope you all will be using all these things like e-learning. Everybody is knowing what is e-learning, what is gamification, what is learning management systems. So it is nothing difficult, not so hard to understand. I'm just going to share what are the practicalities, means how you can use the learning management system. And आप सभी जो participants यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने participate किया हुआ है, so from the day when I think it started from 13th of July, right? So many eminent speakers, they have visited and they have shared a lot of things related to the topic of the FDP, and you would have learned a lot of things, lot of technicalities, lot of technical things, कुछ non-technical भी होगा, ठीक है? मैं थोड़ा सा डिस्कस जो करूँगा वो आपको प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा, एंड कैसे एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप यूज कर सकते हैं. अच्छा, किसी लोगों ने आप लोगों में से कभी किसी ने कोई LMS पे कुछ काम किया है? कुछ अगर पहले से पता हो तो बहुत अच्छा होगा. कोई LMS पर किसी ने कोई काम किया हो, यूज किया हो? कौन सा? सर, फॉर इग्नू LMS. हाँ, इग्नू LMS. वो किस पे बना हुआ है? अच्छा. और किसी ने कोई
हाँ, मूडल किसने बोला? आपने यूज किया हुआ है? दैट्स ग्रेट। और भी कई सब बहुत सारे लर्निंग मैनेजमेंट हैं। मैं कुछ वीडियोज हैं, हालांकि वो वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल गूगल पे आप करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, मैंने भी वहीं से लिए जो आपको मैं दिखाऊंगा कुछ, लेकिन वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है तो थोड़ा सा आपको हेल्पफुल होंगे। बाकी मूडल पर, क्योंकि मूडल में पिछले करीब 10 साल से यूज कर रहा हूँ LMS, है ना, फॉर द लास्ट 10 years व्हेन आई वाज इन LBSIM, तो वहाँ पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था Moodle, and then we started using, and it is really helpful to all of you. You as a faculty, you as a research scholar, you as a PG student, right? And you can organize the things there very easily. For the student point of view, आपको अपना assignments, notes, सब कुछ वहाँ मैनेज कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन क्विज लेनी है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन करना है, ईच एंड एवरीथिंग, और बहुत इजीली तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये फ्री है मूडल। थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन आपको थोड़ा सा उसमें हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि उसके लिए एक सर्वर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट LMS इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको सर्वर पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, देन उसके बाद इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, राइट। तो एक मूडल पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देन चलो स्टार्ट करते हैं। कि पता नहीं, ये तो दीदा 51 स्लाइड्स हैं, अगर मैं सब ऐसे पढ़ूंगा तो मुझे बड़ा अजीब सा भी लगेगा, आपको भी बहुत अजीब सा लगेगा। सो एवरीबडी इज बिकॉज एवरीबडी इज लिसनिंग द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड दिस इज बज़वर्ड नाउअडेज। AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, एनालिटिक्स। और फिर ये एनालिटिक्स आजकल हर एक के साथ जुड़ गया है, ठीक है, चाहे वो सप्लाई चेन की हम बात करें, सप्लाई चेन एनालिटिक्स, या हम किसी भी डोमेन में जाएं, तो पहले जो वर्ड एनालिसिस हुआ करता था वो आज एनालिटिक्स हो गया है। क्यों हो गया एनालिटिक्स? क्योंकि क्या है कि जब हम उसको यूज करते हैं इस पर्पज कि वो कहीं ना कहीं हमको कुछ एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे सके, राइट, बाय अप्लाइंग सम एल्गोरिथम्स। जो एल्गोरिथम्स आज AI में यूज हो रही हैं वो स्टैटिस्टिक्स के एल्गोरिथम्स हैं, सभी को पता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। 20 साल पहले स्टैटिस्टिक्स बहुत कम लोग पढ़ते थे और यूज भी बहुत कम करते थे, क्योंकि डेटा के साथ उसमें बहुत सारा डेटा, फिर उसके बाद छोटी छोटी कैलकुलेशंस। बट विद द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स, ठीक है, नाउ दैट कैलकुलेशन हैज बिकम वेरी इजी, क्योंकि वो कंप्यूटेशन, अब वो सारा काम आपको पेपर पे ना करके वो सारा काम एक्सेल शीट में आपने डेटा दे दिया, उसको उस पर एल्गोरिथम अप्लाई की, और उसके बाद यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स। और वो आजकल सब कुछ जनरेट हो जाता है, ग्राफ वगैरह सब कुछ, जो टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा, जो आप उसमें पढ़ते थे स्टैटिस्टिक्स में, वो अब आप सीधे बस उसमें डालिए, एक फंक्शन कॉल करिए डेटा पर, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। सो दिस इज द एप्लीकेशन। आज जो मशीन लर्निंग है, आप उसे कह सकते हैं कि वो एक एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिक्स का, जो आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले लोग उसको ढंग से यूज नहीं कर पाते थे, पढ़ने में भी बहुत दिक्कत आती थी। जो एल्गोरिथम मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो एल्गोरिथम, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले AI बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसका जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है AI पावर्ड एडेप्टिव लर्निंग, ठीक है, क्योंकि आजकल चाहे वो टीचिंग हो या लर्निंग हो, बिना AI के कोई भी यूज नहीं कर रहा है। और वो AI का इन्वॉल्वमेंट, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा डोमेन हो जहां यूज नहीं हो रहा हो, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो। सो AI टूल्स का एप्लीकेशन इज ऑलवेज एवरीवेयर एक्चुअली, ठीक है। और वो बहुत कैसे हम लोगों के उसमें आ गया है, धीरे धीरे वो हम लोगों को ही नहीं पता, और हम लोग कितने सारे AI टूल्स को डे बाई डे यूज कर रहे हैं, नोइंगली एंड अननोइंगली। चैट GPT सभी लोग यूज करते हैं, गूगल सभी लोग यूज करते हैं, गूगल भी आजकल AI इनेबल्ड हो चुका है, ठीक है। आप
व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, उसमें मेटा है, ठीक है। तो आपको कुछ भी, आजकल लोग मैसेज, सिंपल मैसेज भी खुद नहीं टाइप करना चाह रहे हैं, बस वो आपने, बल्कि आजकल एक जो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कि हाउ टू यूज ऑल दीज थिंग्स, द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, हाउ टू राइट, क्योंकि जितना ये क्या है, इट्स अ टूल एक्चुअली। आप जितना अच्छा उसको समझा सकते हैं कि आपको क्या चाहिए है, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो जितना अच्छा आप पूछोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। फिर भी जैसे जैसे आप, ये क्या है, एक टूल है जिसको कि आप, जैसे आप छोटे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कैसे ये टूल ग्रो करता है विद द यूज, क्योंकि जितना आप अधिक यूज करोगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बच्चा छोटा होता है, उसको कुछ भी नहीं आता, ना लैंग्वेज, ना उसको बोलना, ना समझना, लेकिन वो कैसे सीखता है? अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। अपने पेरेंट्स ने उसको कुछ बोला, कुछ समझा, तो उसको समझ में आया कि हाँ, उन्होंने कहा जाओ उधर, उधर जाओ, ठीक है, तो उसको समझ में आया कि उधर जाने के लिए कह रहे हैं, तो उसकी जो ब्रेन है उसमें ये भर गया कि हाँ, हमको वहाँ सिग्नल आया उसमें। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसको आप समझाते हैं, बताते हैं, उसका डेटाबेस बढ़ता जाता है। ऐसे ही ये भी है AI टूल, द मोर यू यूज, द मोर effective it will be for you later on to get the better results. So चलो स्टार्ट करते हैं पहले से कि ई लर्निंग क्या है। What is ई लर्निंग? आपकी जो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो कि ई लर्निंग से हम ये समझते हैं या वो समझते हैं। लर्निंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, राइट, लर्निंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये एक पार्ट हो गया। और When learning is via digital mode. via digital mode, the same thing. asynchronous learning, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस लर्निंग, राइट। ये सब चीजें जितनी आपके दिमाग में आ रही हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो सब चीजें ई लर्निंग है। मैं आपको बता दूं, मतलब डिजिटल मीडिया को यूज करके, ठीक है, आप जो पढ़ रहे हैं या उसको यूज करना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें जो प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है, ठीक है, उस पर जो कंटेंट आप रीड कर रहे हैं, चाहे वो कंटेंट आपका टेक्सचुअल फॉर्म में है, वीडियो फॉर्म में है, ऑडियो फॉर्म में है, विजुअल फॉर्म में है, ठीक है, समटाइम्स मैसेजेस की फॉर्म में है, समटाइम्स मिक्स ऑफ है, ऑडियो वीडियो, बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें ई लर्निंग में आ जाती हैं। मीन्स लर्निंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसा आपने बताया, ठीक है। अब जब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे ही एक वर्ड बोला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो बहुत सारी चीजें आ गई। हमको उससे रिलेटेड एक सिस्टम चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। तो अब वो प्लेटफॉर्म क्या होगा? इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या चीजें, व्हाट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस, कितनी उसकी बैंडविड्थ चाहिए। मान लो हमारे पास बैंडविड्थ बहुत कम है और हम कोई वीडियो देखना चाहते हैं, वो चलेगा नहीं, राइट। तो मतलब उससे रिलेटेड, उसकी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड कितनी सारी चीजें वो चाहिए हैं, क्या क्या, वो सब इसकी स्टडी में आ जाती है। इसलिए ई लर्निंग बहुत वास्ट एक तरीके से हो गया है। अब इसी में एक वर्ड आ जाता है LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने बताया कि जैसे इग्नू ने, आप ऑनलाइन यदि कोई भी कोर्स करेंगे इग्नू से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, ऑनलाइन मोड में या डिजिटल मोड में, तो वो एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जिसको हम बोल सकते हैं लर्निंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये एक इनफॉर्मल नेम आप कह सकते हैं उसका, जहां पर कि यू विल बी गिवन द स्टडी मटेरियल टू रीड, टू रेफर इन डिफरेंट फॉर्म्स। PDF है, PPTs है, ऑडियो, वीडियो, और द असेसमेंट एज वेल, and there is a mechanism of feedback as well, right? जब हम इन सबको कंबाइन करते हैं तब वो जाकर के हमारा ये सब चीजें हो जाती हैं कि कंटेंट क्रिएशन के बाद उसका असेसमेंट के बाद उसमें आ जाता है फीडबैक,
ये सारी चीजें, and how to manage the platform, right? So when we study all these things, it becomes the study related with the learning management system or LMS. अब आता है AI powered adaptive learning. AI powered adaptive learning. It includes all the things related with the application of artificial intelligence and means the application of artificial intelligence in learning basically, right? तो इन्हीं सब चीजों पे